السلام علیکم ایوری ون. جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، چاہے آپ کے 10 فالوورز ہیں یا 100 فالوورز یا کروڑ یا لاکھ، جتنے بھی فالوورز ہیں، بٹ اگر آپ انفلوئنسر ہو، اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ کے لیے ایک بہت سخت آیت ہے. صرف آپ کے لیے نہیں بٹ میرے لیے بھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نور میں آیت نمبر 19، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، گلیمر عام ہو اور فحاشی پھیلے، جیسے ابھی میوزک شیئر کرتے ہیں بہت سارے لوگ، یوٹیوبرز، انفلوئنسرز. ہم نے خود نے کیا ہے تو ہم کسی اور کو کیا بولیں، ہم نے خود نے یہ گناہ کیا ہے اپنے تھرو. بیٹنگ جیسی، جوئے جیسی مسلمان لوگ، اتنے بڑے بڑے انفلوئنسرز، وہ حیرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. مجھے 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ روپیہ آفر ہوتا ہے بیٹنگ والی چیزوں کے لیے. جنگلی رمی ومی، پتہ نہیں کیا رمی ومی آتا ہے وہ بیچ میں، ایسی چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو پروموٹ کرتے ہیں پیسوں کے لیے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اور نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی آپ کا جو مولوی آپ کو پسند نہیں ہے وہ مولوی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اللہ، استغفر اللہ. اللہ سے جتنا ہو سکے اتنا استغفار کرو. ہم بھی کر رہے ہیں، ہم نے بھی گناہ کیا ہے یار یہ والا، ٹھیک ہے، بینگ اے یوٹیوبر. ہم نے بھی پروموٹ کیا ہے، ہم نے بھی کس چیز کو، گانوں کو پروموٹ کیا ہے، موویز کو پروموٹ کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ عقل آئی ہے تھوڑی سی. تو اگر آپ یہ چیز کر رہے ہو تو مت کریے. اگر آپ گانوں والی چیزیں اپنی سٹوری میں ڈالتے ہو یا پھر کسی کو شیئر کرتے ہو، اعلانیہ گناہ ہے یہ، اعلانیہ گناہ. اور آپ بچو گے نہیں، دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی. پلیز اس چیز کو تھوڑا سا دھیان سے اور میک شور کرو کہ آپ یہ چیز دوسروں کو بھی بتاؤ، سو دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آج کا ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. یہ قصہ میں نے کبھی سنا نہیں، پہلی بار سن رہا ہوں. کشمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کس نے اور کیوں چرایا تھا؟ پہلی بات تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ لائک یہ سچی سٹوری ہے یا نہیں. اینڈ RH نیٹ ورک ایک بہترین چینل ہے، لائک ٹرسٹ بھی ہے وہ چینل پہ. تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی سمجھ آئے گا، اور اس سے پہلے تو نہیں. سو لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو. تو یہ کہانی ہے اس خوبصورت کشمیر کی کہ جس کو ہماری پوری دنیا کی جنت مانا جاتا ہے. دن تھا 4 جنوری سن 1964 کا کہ جب پورے ہی کشمیر میں ہلہ مچا ہوا تھا. ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا. کشمیر کے لگ بھگ 50-60 ہزار لوگ کچھ خاص میدانوں میں اور کچھ خاص سڑکوں پر اکٹھا ہو چکے تھے. ان تمام کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے موجود تھے اور یہ سبھی لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر ٹکٹکی باندھ کر صرف اور صرف ایک چھت کی طرف دیکھ رہے تھے. ان کو انتظار تھا کسی خاص اور قیمتی چیز کا. یہ اسی چھت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جس چھت کے اوپر انڈین انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر یعنی کہ بھولا ناتھ ملک اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. کچھ دیر کے بعد ہی بھولا ناتھ ملک نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان کے ہاتھوں میں لکڑی کی ایک ڈبی موجود تھی. لکڑی کی اس ڈبی کو دیکھ کر 50-60 ہزار لوگوں کا وہ مجمع جو پہلے ہڑبڑا رہا تھا اور افراتفری کا ماحول بنائے ہوا تھا، اچانک سے شانت ہو گیا. مگر دوستو یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ یہ لکڑی کی ڈبی اپنے اندر قیامت سمیٹے ہوئے تھی. کیونکہ اس لکڑی کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں میں پوری ہی دنیا میں وہ سب کچھ ہوا تھا کہ جس کے بارے میں شاید ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. دراصل یہ لکڑی کی ڈبی پچھلے کچھ دنوں پہلے چوری ہو چکی تھی، اور چوری ہونے کے بعد نہ صرف انڈیا پاکستان میں ہی دنگے شروع ہوئے بلکہ باقی پوری مسلم دنیا میں بھی مانو قیامت آ گئی تھی. پاکستان لگاتار اس میٹر کو UN لے جانے کی بات کر رہا تھا. ایون کشمیر سے مکھ منتری تک کو ہٹانے کی نوبت آ گئی تھی. دیش کے پردھان منتری جواہر لال نہرو جو اس وقت بیمار چل رہے تھے، انہوں نے ہوم منسٹر کے ساتھ ساتھ اپنے سبھی ایکسپرٹس کی ٹیمیں بھی کشمیر میں ہی لگا رکھی تھیں. کشمیر میں لگ بھگ ہر طرف انڈین ایکسپرٹس نے ہی ڈیرا ڈال رکھا تھا، جن کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اس لکڑی کی ڈبی کو جلد سے جلد کھوج نکالنا. بھلا کھوجنے کی کوشش بھی کیوں نہ کی جاتی، کیونکہ اس لکڑی کی ڈبی کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہی نہ صرف سینکڑوں لوگ اپنی جان گنوا چکے تھے بلکہ ہزاروں لوگ زخمی ہو چکے تھے. ایون حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ دعویٰ یہاں تک کیا جاتا ہے کہ ہمارے دیش کے پہلے پردھان منتری یعنی کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی جان بھی اسی ہارٹ اٹیک نے لی تھی، کہ جو ہارٹ اٹیک ان کو دراصل اسی حادثے کی وجہ سے آیا تھا. یعنی کشمیر میں ہونے والے اس پورے تو گائز، اگر آپ اپنے فون کے ذریعے گھر پہ بیٹھ کے آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہو، ایفیلیٹ مارکیٹنگ، کاپی رائٹنگ، گوگل ایڈس، فیس بک ایڈس، کنٹینٹ رائٹنگ، یا پھر ایسے ہی جو بھی سکلز ہوتے ہیں، جو ڈیجیٹل سکلز ہوتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، تو اس حساب سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو، لائف میں آگے گرو کرنا چاہتے ہو،
अपने फ़ोन के ज़रिए घर पे बैठ के, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम है, इस पे भी चेक कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच। सवाल की वजह से इस डिब्बी की वैल्यू यानी इस डिब्बी की अहमियत का अंदाजा हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भोलानाथ मलिक इस डिब्बी को ढूंढने में कामयाब हो गए थे तो दिल्ली से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भोलानाथ मलिक को फोन करके कहा था कि ए मलिक, तुमने सिर्फ डिब्बी को नहीं ढूंढा है बल्कि तुमने कश्मीर को बचा लिया है। फिलहाल दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर इस डिब्बी के अंदर आखिर ऐसा था क्या, इस डिब्बी को क्यों चुराया गया था, कैसे चुराया गया था और बाद में इस डिब्बी को कैसे ढूंढा गया। क्या वजह थी कि इस डिब्बी की वजह से न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया था। तो चलिए अब हम अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस लकड़ी की डिब्बी में कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक बाल मौजूद था। मगर हाँ, ये बाल कोई आम बाल नहीं था बल्कि ये तो मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का बाल था, जिसको मुँह मुकद्दस के नाम से जाना जाता है और जो कश्मीर की हजरत बल मस्जिद के अंदर मौजूद है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बाल भारत में और भारत में भी खास तौर से कश्मीर कैसे पहुंच गया। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों को जानने के लिए हमको थोड़ा और पीछे चलना होगा। ये बात है 17वीं सदी की कि जब सैयद अब्दुल्ला नाम के एक शख्स मदीना से भारत की तरफ आए थे। भारत आते वक्त वो मदीने से 3 मुकद्दस चीजें लेकर आए थे, जिनमें से एक थी हजरत अली की पगड़ी, दूसरी हजरत अली के घोड़े की जीन, जबकि तीसरी चीज थी मुँह मुबारक यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का बाल। ऐसा माना जाता है कि जब सैयद अब्दुल्ला की वफात हो गई थी तो उनकी मौत के बाद इन तमाम चीजों को संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटे यानी कि सैयद हामिद के पास आ गई थी। अब सैयद हामिद के पास से ये मुँह मुकद्दस कश्मीर कैसे पहुँच गया था, इसको लेकर भी अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ इतिहासकारों का तो ये मानना है कि सैयद हामिद ने दरअसल इस मुँह मुबारक को कश्मीर के एक व्यापारी के जिसका नाम नूरुद्दीन हुआ करता था उनको बेच दिया था, जबकि कुछ के मुताबिक उन्होंने बेचा नहीं था बल्कि एक दिन ख्वाब में खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद हामिद से कहा था कि उन तीनों मुकद्दस चीजों में से एक चीज नूरुद्दीन के हवाले कर दिया जाए और इसीलिए सैयद हामिद ने मुँह मुकद्दस को नूरुद्दीन के हवाले कर दिया था। नूरुद्दीन उस दौर में इस मुकद्दस यानी कि पवित्र बाल को लेकर लाहौर आ गए थे। उस दौर में लगभग पूरे ही भारत के इलाके पर मशहूर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत हुआ करती थी। मुगल बादशाह को जब इस पूरे मैटर की खबर हुई तो न सिर्फ नूरुद्दीन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया बल्कि उस मुकद्दस बाल को लेकर अजमेर की जो मशहूर दरगाह है यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उसमें रखवा दिया गया। हालांकि बाद में यानी सन 1700 में औरंगजेब आलमगीर के ऑर्डर पर ही इस मुकद्दस बाल को अजमेर से कश्मीर की तरफ ट्रांसफर करवा दिया गया था। कश्मीर में सबसे पहले तो इसको नक्शबंद साहिब की दरगाह पर रखवाया गया था, जहां पर हजारों की तादाद में लोग इसका दीदार करने के लिए आते थे। मगर धीरे धीरे इन आने वाले लोगों का आंकड़ा इतना बढ़ गया कि वो जगह छोटी पड़ने लगी। आखिरकार बाद में इसको सादिकाबाद की तरफ शिफ्ट कर दिया गया और सादिकाबाद की जिस मस्जिद में इसको रखवाया गया था उस मस्जिद की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि शुरू में यहाँ पर सिर्फ एक आम इमारत ही हुआ करती थी जिसको जाना जाता था इशरत महल के नाम से, और इस इमारत को बनवाया था 1630 में कश्मीर के एक सूबेदार सादिक खान ने। 1634 में जब इस इलाके का दौरा उस दौर के मुगल बादशाह यानी कि शाहजहां ने किया तो उन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद भी बनवा दी और फिर 1700 में इसी जगह पर ही उस मुकद्दस बाल को ट्रांसफर करवाया गया था और उसके बाद से ही इस जगह को हजरत बल दरगाह के नाम से जाना जाने लगा था। उस दौर में इस पूरे इलाके की देखरेख की जिम्मेदारी नूरुद्दीन की बेटी इनायत बेगम के हाथों में थी। इनायत बेगम की शादी जिस खानदान में हुई थी उस खानदान के लोग अपने नाम के आगे बंदे लगाया करते थे और इनायत बेगम की शादी के साथ ही ये बात भी कंफर्म कर दी गई थी कि अब फ्यूचर में हमेशा इस मुँह मुकद्दस की जिम्मेदारी यानी इस मुँह मुकद्दस की देखरेख बंदे फैमिली के लोग ही किया करेंगे और ये परंपरा अगली कई सदियों तक चलती रही थी। फिलहाल वक्त गुजरा और दौर आया 1963 का कि जब 27 दिसंबर के दिन एक खादिम के जिसका नाम खलील हुआ करता था और जो हर रात में हजरत बल दरगाह में सोया करता था, वो जब सुबह में उठा उसने वजू बनाया और वजू बनाकर जब वो मस्जिद के मेन हॉल में पहुंचा ताकि फजर की नमाज अदा कर सके तो उसकी नज़र जब हुजरे खास पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। दरअसल हुजरे खास उस जगह को बोला जाता था कि जहाँ पर पूरे एहतमाम के साथ उस मुँह मुकद्दस को रखा गया था, क्योंकि वहाँ के हालात पूरी तरह से बदले हुए थे, क्योंकि हुजरे खास के चांदी के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर जो एक सेफ मौजूद थी जिसको खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत हुआ करती थी, उस सेफ को भी तोड़ दिया गया था। खादिम घबरा
कर करीब पहुंचा और उसने जब अंदर चेक किया तो उसको पता चला कि वो लकड़ी की डिब्बी के जिसके अंदर वो पवित्र यानी मुकद्दस बाल रखा हुआ होता था वो भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर तो मानो खलील के होश फाख्ता हो गए। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागा और सीधा चीफ ट्रस्टी यानी कि अब्दुर्रहमान बंदे के पास पहुंचा। ये खबर आग की तरह फैलती चली गई और अगले 1-2 घंटे के अंदर ही हजारों की तादाद में कश्मीर की सड़कों पर लोग काले झंडे लेकर निकल चुके थे। कुछ घंटों के बाद खुद हजरत बल दरगाह के आसपास भी सिर्फ लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। ऐसी भीड़ के जिसके हाथों में काले झंडे थे और वो हर हाल में इस चोरी होने वाली मुकद्दस अमानत को वापस चाहते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था कश्मीर के हालात भी बदलते जा रहे थे। अब जगह जगह से गोलियां चलने की खबरें आ रही थीं, दंगे होने की खबरें आने लगी थीं। जलते हुए कश्मीर की लपटें अब धीरे धीरे दिल्ली में भी महसूस की जाने लगी थीं। यही वजह है कि भारत की गवर्नमेंट भी बहुत जल्द ही एक्शन में आ चुकी थी। याद रहे दोस्तों कि ये घटना सन 1960 और 70 के बीच की है, इसीलिए ये उस दौर का कश्मीर था कि जब कश्मीर के सबसे ताकतवर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि शेख अब्दुल्ला को ऑलरेडी जेल में डाला जा चुका था और उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को सीएम बना दिया गया था। हालांकि बाद में उनको भी हटाना पड़ गया था और अब उनकी जगह ख्वाजा शमसुद्दीन को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू भी आजादी के बाद से अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। 1962 में चाइना से हारने के बाद वो पुराने वाले नेहरू नहीं रह गए थे, बल्कि बहुत सारी राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। मगर उसके बावजूद भी वो हादसा कि जो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ था और जिस हादसे के बाद से ही लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई थी, वो दरअसल यही हजरत बल दरगाह का हादसा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जैसे ही हालात को बिगड़ते हुए देखा तो उन्होंने सबसे पहले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूरी टीम को कश्मीर रवाना किया। उनके पीछे देश के होम मिनिस्टर भी रवाना हो गए थे। कश्मीर के जो उस दौर के चीफ मिनिस्टर थे यानी कि शमसुद्दीन, उन्होंने भी हालात अपने हिसाब से संभालने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने चोर को पकड़ने पर 1 लाख तक का इनाम तक रख दिया था, मगर उसके बावजूद भी हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन हालात और भी ज्यादा बुरे होने लगे और जगह जगह से सरकारी दफ्तरों पर हमले होने की खबरें आने लगी। हैरानी की बात तो ये है कि ये मसला अब किसी धर्म का मसला नहीं रह गया था, बल्कि इसको कश्मीरियत से जोड़कर देखा जा रहा था। और शायद यही वजह थी कि कश्मीर में होने वाले ज्यादातर प्रोटेस्ट में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू और सिख लोग भी शामिल हो रहे थे। हर तरफ मुए मुकद्दस को वापस लाने की मांगे की जा रही थी और दुआएं की जा रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी धीरे धीरे एक अलग ही माहौल बन रहा था। सबसे पहले इस घटना के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र के पास विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद पाकिस्तान के नेताओं ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि दरअसल ये जो हजरत बल दरगाह का ये जो पूरा मैटर है ये इंडियन गवर्नमेंट की एक साजिश है। धीरे धीरे हालात और भी ज्यादा बुरे होते गए और अब पाकिस्तान से भी दंगे होने की खबरें आने लगी थीं। पाकिस्तान में तो एक के बाद एक लोगों की जानें भी जाना शुरू हो गई थीं और इन दंगों की वजह से लगभग सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 31 दिसंबर के दिन फाइनली अब भोलानाथ मलिक को भी उनकी टीम के साथ कश्मीर रवाना किया गया। भोलानाथ मलिक ने जब इस पूरे मैटर की छानबीन शुरू की तो उनके दिमाग में सबसे पहले वो चांदी का दरवाजा खटका कि जो दरअसल उस हुजरा खास के बाहर लगा हुआ था, क्योंकि उसको देखने के बाद वो समझ गए थे कि दरअसल ये सबको चोरी की नियत से किया ही नहीं गया है, क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करता तो उस लकड़ी की डिब्बी के साथ साथ इन चांदी के दरवाजों को जरूर ले जाता। इसीलिए उस दौर में ये थ्योरी भी चलाई गई थी कि किसी इंसान ने खुफिया तौर पर इस मुए मुकद्दस का दीदार करना चाहा था। वहाँ से निकाल कर तो वो ले गया था, मगर जब वक्त पर उसको वापस ना रख सका तो आखिर में उसने इस चीज को चोरी का सीन बना दिया। दोस्तों अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे हालात भी और ज्यादा बुरे होते जा रहे थे। पाकिस्तान की वजह से अब दुनिया के दूसरे मुस्लिम देश भी कश्मीर के इस मैटर को लेकर एक्टिव होने लगे थे। मगर फिर 4 जनवरी के दिन अचानक से शाम में ये खबर उड़ना शुरू हुई कि मुए मुकद्दस वापस आ गया है। मुए मुकद्दस वापस आ गया है, वो लकड़ी की डिब्बी वापस आ गई है। मगर वो लकड़ी की डिब्बी कौन वापस लेकर आया और कैसे लेकर आया, इस बारे में किसी को कुछ खबर नहीं थी और वैसे भी इन सारी चीजों के बारे में कोई जानना भी नहीं चाहता था। बल्कि सबसे जरूरी चीज उस वक्त थी हालात को बेहतर करना और लोगों को इस बात का यकीन दिलाना। दूसरी तरफ लोग भी शुरू में तो इस डिब्बी की वापसी से काफी खुश थे, मगर फिर बाद में धीरे धीरे लोगों के बीच वहम पैदा हो गया और लोग ये मांग करने लगे कि भाई कैसे यकीन किया जाए कि ये मुए मुकद्दस असली है। हो सकता है कि किसी ने माहौल को कंट्रोल करने के लिए नकली चीजों का इस्तेमाल किया हो। इसीलिए आखिर में ये फैसला लिया गया कि इन तमाम चीजों का फैसला मुस्लिम स्कॉलर्स करेंगे। और फाइनली उस दौर के कश्मीर के सबसे मशहूर सूफी बुजुर्ग कि जिनका
नाम सैयद मीराक शाह काशानी हुआ करता था, उनको बुलवाया गया। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा उम्र दराज हो चुके थे और उनकी नजर भी काफी कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने लगभग 60 सेकंड तक उस लकड़ी की डिब्बी को घूर कर देखा। इन 60 सेकंड्स में ही कश्मीर की किस्मत तय होने वाली थी कि कश्मीर में अब सुकून और शांति आएगी या फिर वैसे ही माहौल बना रहेगा। लगभग 60 सेकंड तक लगातार उसको घूर कर हर तरफ से देखने के बाद सूफी सैयद मीराक शाह काशानी ने उस डिब्बी के ऊपर मुहर लगा दी। सैयद मीराक शाह काशानी के इस डिब्बी पर मुहर लगाते ही पूरे कश्मीर में खुशी का माहौल हो गया। दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी चैन की सांस ले रहे थे। मगर दोस्तों, अब आखिर में सवाल तो फिर भी यही बचता है कि आखिर उस लकड़ी की डिब्बी को चुराया किसने था। तो जैसा कि उस दौर के होम मिनिस्टर यानी कि गुलजारी लाल नंदा की तरफ से संसद में ये बताया गया था कि दरअसल इस चोरी में 3 लोगों का हाथ था, जिसमें से एक तो खुद दरगाह का खादिम था जबकि दूसरे का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बाद में इन लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार भी किया गया था। मगर दोस्तों, कश्मीर के आम लोगों में इस चोरी से रिलेटेड एक अलग ही कहानी चलती है। उनके मुताबिक चोरी तो कभी हुई ही नहीं थी, बल्कि जो दरगाह का खादिम था उसको बस बलि का बकरा बनाया गया था। हुआ ये था कि बख्शी गुलाम मोहम्मद के जिनको किसी दौर में कश्मीर का सीएम बनाया गया था, जिनके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, उनके घर की एक बूढ़ी औरत इस मुए मुकद्दस का पर्सनली यानी अकेले में दीदार करना चाहती थी। इन्हीं बूढ़ी औरत ने उस लकड़ी की डिब्बी को वहाँ से गायब करवाया था और बाद में वहाँ पर रखवा भी दिया था। फिलहाल दोस्तों, 1963 में होने वाले इस हादसे से जुड़े अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब नहीं ढूंढे जा चुके हैं। लेकिन हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये वही हादसा था कि जिसने जवाहरलाल नेहरू की तबीयत में वो बिगाड़ पैदा किया था कि जिस बिगाड़ ने कुछ महीनों के बाद उनकी जान ले ली थी। रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था ये। फर्स्ट टाइम हमने ऐसा कुछ सुना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक हैं, दाढ़ी के बाल मुबारक, वो एक डिब्बी में थे एंड एक दरगाह में थे, वहाँ से चोरी हुए, वो भी कश्मीर से। कश्मीर में ऐसा कुछ था ये भी मुझे पता नहीं था, अभी भी है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है। आप सब लोग एक चीज़ बताओ, आप सब लोग इस चीज़ के बारे में बताओ जो भी लोग कश्मीर में रहते हैं। और आप सबसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारी हदीसें सुनी है। बीइंग अ न्यू मुस्लिम मुझे ये जानना है, ठीक है, बीइंग अ न्यू मुस्लिम आप सबसे ये जानना है। हालांकि मुझे पता है ये चीज़, ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से इस्लाम को रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ 3 साल से, ठीक है। बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश भी की है, बट स्टिल मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्होंने फरमाया है कि जो कब्र है, कब्र पक्की नहीं होनी चाहिए, राइट, कच्ची होनी चाहिए और वो एकदम ऐसे लेवल की होनी चाहिए, नीचे लेवल होना चाहिए। आपको पता ही होगा, अगर आपको ये हदीस पता है। अगर हम मक्का मदीना जाते हैं, वहाँ पे जो कब्रें हैं, देखो आप, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े सहाबी हैं, बट सबकी कब्र एकदम ऐसे लेवल में होती है। मतलब किसी की भी कब्र ऐसे मतलब डिज़ाइनर या फिर ऐसे बहुत बड़ा लाइक नहीं होती है, बिकॉज वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो मैं सबसे ये जानना चाहता हूँ मुसलमानों से कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमान दिया, जब उन्होंने ये चीज़ बोली है, तो स्टिल क्यों हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े जो उलमा थे जो गुज़रे हैं पास्ट में, राइट, उन सब की जो कब्रें हैं दरगाह जैसे बनी हुई हैं, राइट, एंड उसके साथ साथ वहाँ पे लोग जाके लाइक धागा बांधते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके सजदे करते हैं। और जब उनको पूछो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि आपको नहीं पता है, आप चुप रहो, ये अल्लाह के वली हैं और ये हमारी बात सुनते हैं, हम इनसे दुआ करते हैं, हम इनसे दरख्वास्त करते हैं सो दैट ये हमारी जो बात है, हमारी जो ख्वाहिश है, उसको अल्लाह तक पहुंचाते हैं, हम इनके लिए इसलिए ऐसा करते हैं। मैंने बोला भाई यार, मतलब इंसान नमाज में डेली पढ़ता है इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, फिर भी मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के बारे में। मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए उन लोगों से जो लोग ये चीज़ करते हैं जो मैंने अभी बताई है, सिर्फ उन लोगों से, सबसे नहीं, कि भाई अगर रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ बोल दी तो उनकी वो पत्थर की लकीर होगी भाई, उस पर ज़्यादा वो कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर इख्तलाफ है ही नहीं किसी भी चीज़ का। तो फिर क्यों, वाई? क्योंकि ही वॉज द लास्ट पैगम्बर, ही वॉज द लास्ट नबी, राइट। तो उसके बाद क्या उनसे बड़ा मर्तबा किसका है? किसी का भी नहीं है। तो वही मुझे पूछना था, मैंने पूछ लिया, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, See you.